اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، اس وقت میں ہندوستان کے تاریخی اور قدیم شہر جہاں ایک بہت بڑے اللہ والے آرام فرما رہے ہیں، حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کے شہر گلبرگہ میں ہوں، اور پھر رات میں یہاں سے قریب میں تقریباً نزدیک ہی میں افضل پور کر کے ایک بڑا شہر ہے، وہاں پر مدرسہ الفلاح جو ایک لڑکوں کا ادارہ بھی ہے، اس ٹرسٹ کا بیٹیوں کا ادارہ بھی ہے، بڑا شاندار ادارہ ہے۔ یہاں پر باقاعدہ مدرسہ الفلاح و جامعہ عائشہ للبنات افضل پور کا عظیم الشان سالانہ جلسہ عام ہونے جا رہا ہے۔ آج رات میں باقاعدہ فارغ ہونے والے طلبہ کی دستار بندی ہوگی اور ختم مشکات شریف کا عظیم الشان اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اسی کے لیے میں گلبرگہ افضل پور کرناٹکا آیا ہوا ہوں، آواز کی شکل میں، آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ سفر کو آسان فرمائے اور اس پروگرام کو بے انتہا کامیاب فرمائے۔ رات 2 بجے کے قریب اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام یہاں پر اسٹیشن پر، رات 2 بجے کے قریب اتنے بڑی تعداد میں علماء کرام مجھے لینے آئے۔ میں ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی رات کو وہ لینے آئے، ستکار کیا، سمان کیا، اور اس وقت ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پر ان لوگوں نے مہمان نوازی کی، قیام کیا ہے، ٹھہرایا ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ میں بھی برکتیں نصیب فرمائے اور ان لوگوں کے کاروبار میں بھی خوب برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، ملک میں شر انگیز، فتنہ انگیز زہریلے سانپوں کی بھرمار ہے، اور جتنے زہریلے سانپ ہیں ان کو بی جے پی بڑا سپورٹ کرتی ہے، بلکہ اسمبلی پارلیمنٹ میں پہنچا کر انہیں منتری پد بھی دے دیتی ہے۔ جو جتنا زہریلا ہوگا، جو جتنا ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلائے گا، بی جے پی اتنا ہی اس کو سر پر بٹھائے گی اور عزتوں کا تاج پہنائے گی۔ ایسے ہی تلنگانہ حیدرآباد اسد الدین اویسی کے شہر کا ایک خبیث ہے جس کا نام ہے راجہ سنگھ، بی جے پی کا ہی لیڈر ہے، بڑی ذلت کے ساتھ میں ہارا ہے۔ خیر، بی جے پی کے اس رہنما راجہ سنگھ نے پھر ایک شرارتی بیان دیا، پربھنی مہاراشٹر میں آ کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اورنگزیب
रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बुलडोज़र चला दिया जाए। ये खबीस नहीं जानता कि यही औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह है जिन्होंने इस मुल्क पर 50 साल तक अमन अमान, एकता, शांति के साथ में हुकूमत की और इस देश को आगे बढ़ाया और इस देश को इतना कुछ दिया कि आज करोड़ों अरबों रुपये ये देश और ये चोर हुकूमत खा रही है। मगर क्या करे, राजा सिंह और हमारे महाराष्ट्र का नीतीश रानी, ये सब जहरीले सांप है जिनको बीजेपी आगे बढ़ाकर हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का ठेका देती है ताकि मुल्क में नफरतें फैलेगी तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। खैर, इसने महाराष्ट्र के परभनी आकर बड़ा शरअंगेज मुतालबा किया है कि हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर बुलडोज़र चला दिया जाए। इसकी जिंदगी पर बुलडोज़र चल जाएगा मगर औरंगजेब के मज़ार पर बुलडोज़र चलना नामुमकिन है। दूसरी बड़ी खबर आ रही, जी हाँ, आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते नई दिल्ली स्टेशन पर महाकुंभ मेले में जाने वालों की जो भगदड़ मची थी और 18 लोगों की तकरीबन जानें चली गई थी। वैसे तो महाकुंभ में रोजाना कांड हो रहे हैं, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी सरकार पूरी तरीके से कुंभ मेले को लगाने में फेल हो चुकी है। यहां तक कि संतों ने यह भी कह दिया कि योगी आदित्यनाथ ने इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर बेगैरत, बेशरम, मोटी चमड़ी का है, शर्म नहीं आएगी, इस्तीफा नहीं देगा। खैर, नई दिल्ली स्टेशन पर जो भगदड़ हुई थी और मौतों का मंजर लोगों ने देखा था और वीडियोस बनी थी, अब इस वीडियोस को हटाने के आदेश दिए गए हैं। रेलवे ने एक्स को यानी ट्विटर को नोटिस जारी करते हुए 288 लिंक्स को हटाने को कहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि इससे इनकी बेइज्जती हो रही है और महाकुंभ मेला भी बदनाम हो रहा है और हुकूमत भी बदनाम हो रही है। इसलिए एक्स को यानी ट्विटर को आदेश दिया गया है कि नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ की वीडियोस हटा दी जाए। नाजरीन, अडानी जो गोया के असल फाइनेंसर है भारतीय जनता पार्टी के, आपने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले वो भी मेरे ख्वाजा के आस्थाने पर हाजिरी देने अपनी बीवी के साथ चले गए। खैर, अडानी के मामले में बड़ा मशहूर है कि बीजेपी को फाइनेंस करने वाला, नरेंद्र मोदी का असल फाइनेंसर और असर रखवाला और बीजेपी का असल मुहाफिज अगर कोई है तो वो अडानी है। और इसी अडानी के हाथों में नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने मुल्क की यूं समझिए कि आधी जायदाद को बेच दिया है। मुल्क के बड़े बड़े खजाने जो है वो अडानी के हाथों में, ज़मीनें और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज चली गई है। अडानी को लेकर राहुल गांधी ने दबंग अंदाज में, बड़े बेबाक अंदाज में कई मामलात को उठाया है। अब राहुल गांधी का बड़ा बयान आया है कि अडानी तनाज़ा पीएम मोदी का जाती मामला नहीं है, ये पूरे मुल्क का मामला है। आप जानते हैं कि अडानी पर अमेरिका ने भी लगाम कसना शुरू कर दी है और कई केसेस डाला है जिसको लेकर नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना शर्मनाक ये मामला है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के संभल से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल में जामी मस्जिद के मामले को लेकर वहां पर फसाद फूट पड़ा, अंग्रेजों ने शरारत की और कई बेकसूर मुसलमानों की जानें चली गई। उत्तर प्रदेश में संभल जामे मस्जिद का सर्वे करवाने की मांग को लेकर माहौल ख़राब हो गया था और उस वक़्त पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में एक खातून को कैद किया गया था। अब ये खबर आ रही कि संभल में पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में कैद खातून की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। 24 नवंबर को पेश आने वाली तशद्दुद की वारदात के दौरान पत्थरबाजी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक खातून को अदालत ने सबूत न होने की बुनियाद पर ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। खैर, यानी अदालत खुद कह रही कि सबूत न होने की बुनियाद पर, तो ऐसे कई लोगों को पुलिस वालों ने कैद में डाल दिया और सलाखों के पीछे फेंक दिया जिनके गिरफ्तारी के वक्त कोई सबूत नहीं है। मगर योगी आदित्यनाथ की बदमाश पुलिस बगैर किसी सबूत के मुसलमानों को जेल की सलाखों में पहुंचाने का काम करती है।
नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है नई दिल्ली से। आप जानते हैं कि एक समाजी कारकुन, समाज सेवक उमर खालिद, जो दिल्ली फसाद और CAA के वक्त से उठाकर जेल की सलाखों में जिसे ठूस दिया गया है, जबकि बड़े बड़े आतंकवादी जिन्होंने उस वक्त नारे लगाए थे गोली मारो सालों को और न जाने कैसा माहौल बनाया था, बीजेपी ने इन तमाम को बचा लिया है और ये सब के सब आज़ादी के साथ बाहर घूम रहे हैं, बल्कि इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे थे। खैर, उमर खालिद जो जेल के सलाखों में हैं, इन्होंने अदालत में कोर्ट में यह दलील दी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होना जुर्म नहीं, क्योंकि उमर खालिद पर जो कई इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसमें एक ये भी है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर कई लोगों के साथ में उमर खालिद जुड़े हुए हैं और जो मशकूक है उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो उस वक्त में व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने को लेकर हाई कोर्ट में दलील देते हुए कैद उमर खालिद ने कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होना जुर्म नहीं। हमारे नंबरात भी कई ग्रुप्स में लोगों ने शामिल कर लिया है, अब हमें खुद को नहीं मालूम होता है कि वो कौन है या उनका ताल्लुक कैसा है, उनके कारोबार क्या है या उनके मामलात कैसे हैं। लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल कर लेते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होना कोई जुर्म नहीं है। नाज़रीन, आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू वहाँ के वज़ीर आला ने यह यकीन दिलाया है कि इंतखाबी मंशूर में इलेक्शन के वक्त में जो भी मुसलमानों से वादे किए गए थे वो तमाम के तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इंतखाबी मंशूर में चंद्राबाबू नायडू ने मुसलमानों से बहुत वादे किया था और अब उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि वो तमाम वादे जो मुसलमानों से किए गए थे पूरे किए जाएंगे। आप जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी की लंगड़ी लूली बेसहारा सरकार को सहारा दिया है चंद्रबाबू नायडू ने और नीतीश बाबू ने। नीतीश बाबू के बारे में तो मालूम है कि वो पलटू राम है, कभी भी पलट सकते हैं और कभी भी पलट जाएंगे और हुकूमत गिर सकती है। ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू ने भी सहारा दिया है। यकीन है कि बहुत जल्द चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू अगर घूम जाते हैं, पलट जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी की कुर्सी धड़ाम करके गिर जाएगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है वसीम रिजवी को लेकर। अब खैर वो वसीम तो नहीं है, बदबख्त खुद ही अपने हाथों जहन्नम की तैयारी कर लिया, जितेंद्र त्यागी बन गया। वसीम रिजवी ये वही खबीस है जिसने कई मरतबा मदारिस के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। फिर अल्लाह ने ऐसा जलील किया और अल्लाह ने ऐसा गुमराह किया कि ख़ुद वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी बन गया और अभी महाकुंभ में डुबकी लगाने भी गया था। खैर, बड़ी खबर उसको लेकर ये आ रही कि श्रीनगर अदालत ने हुक्म दिया है कि जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी जाए। यानी श्रीनगर अदालत ने कहा है कि जाओ, एक टीम यहाँ से जाओ और जितेंद्र त्यागी को गिरफ्तार करके लाओ। श्रीनगर अदालत में, श्रीनगर में वहाँ पर भी जितेंद्र त्यागी पर मुकदमा चल रहा है और यही वजह है कि शायद जितेंद्र त्यागी ने बहुत सारे मुकदमात से बचने के लिए बीजेपी का सहारा लिया था और हिंदू बना ताकि वो किसी हाल में बच जाए। खैर, उसने अपनी हमेशा हमेशा की ज़िंदगी यानी आखिरत की ज़िंदगी तो तबाह कर लिया, जहन्नम ही खुद बन गया, अब दुनिया में भी बचने की कोशिशें कर रहा है। नाज़रीन, महाकुंभ को लेकर एक शर्मनाक खबर फिर सामने आ रही है। महाकुंभ में बहुत सारे कांड हुए। ममता दीदी ने तो डायरेक्ट कर दिया कि यह महाकुंभ नहीं, यह मौत का कुंभ था। हजारों लोगों की जानें भी चली गई, पूरी तरीके से निज़ाम दरहम बरहम हो गया और महाकुंभ को सजाने में, लगाने में, संवारने में बीजेपी सरकार, योगी हुकूमत पूरी तरीके से नाकाम हो गई। लेकिन अब शर्मनाक खबर यह आ रही है कि महाकुंभ में खवातीन के अश्दान यानी महिलाओं के नहाने की वीडियोस फरोख्त की जा रही थी। यानी आप समझ सकते हैं कितनी नीच और कितनी घटिया हरकतें महिलाओं के साथ में वहां पर हुई है। खैर, उनकी वीडियोस नहाने की फरोख्त करने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की है। ये 3 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये प्रयागराज में महाकुंभ मेले में खवातीन के अश्नान यानी महिलाओं के नहाने की वीडियोस इन्होंने बनाया था और फरोख्त कर रहे थे। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, संजय निरुपम एक लीडर है। संजय निरुपम ने एक बड़ा दावा करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम बिल्डर्स ने हिंदू दरखास्त गुजारों को
SRA में मुस्तरद किया। मुंबई में हाउसिंग जिहाद का इल्ज़ाम लगाया गया है। बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है संजय निरुपम के जरिए से मुस्लिम बिल्डर्स पर। हालांकि संजय निरुपम की इस बात में रत्ती बराबर भी सच्चाई नहीं हो सकती, क्योंकि मुसलमान कभी ऐसा नहीं करता, बल्कि लाखों मिसालें ऐसी है कि जहां पर हाउसिंग सोसाइटी में, मोहल्लों में मुसलमानों को घर नहीं दिया जाता है, ना खरीदने दिया जाता है, ना किराए के तौर पर फ्लैट्स में उन्हें जगह दी जाती है। हजारों मिसालें ऐसी मिल जाएगी। लेकिन खैर, अभी संजय निरुपम ने बड़ा दावा करते हुए यह कहा है कि मुस्लिम बिल्डर्स ने हिंदू जितने लोग हैं, दरखास्त गुजार है, उनको SRA में मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त वादी कश्मीर श्रीनगर, जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है, वहाँ पर बड़ी शानदार मस्जिद है, जामे मस्जिद। मैंने खुद वहाँ पर अपनी आंखों से देखा। अल्लाह ने बड़ा सुकून रखा है और बड़ी खूबसूरत लकड़ों की वो मस्जिद बनाई गई है और बहुत वसी है। 20 से 30 हज़ार लोग वहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। लेकिन बार बार हुकूमत की जानिब से जामे मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। इसी को लेकर अब मीर वाइज, जिनको नजरबंद किया गया है, मीर वाइज का बड़ा बयान आया है और उन्होंने हुकूमत को वार्निंग दिया है कि हुकूमत बार बार जामे मस्जिद को बंद न करें। इबादत इलाही की अदायगी हमारा हक है और इस मामले में गैर ज़रूरी मुदाखलत हम सब के लिए नाकाबिल कबूल है। एक्चुअल में हुकूमत डरती है वहाँ पर जमा होने से, तो अक्सर थोड़े थोड़े दिनों में कभी खबरें आपको सुनने को मिलती होगी कि जामी मस्जिद को जुमा के दिन बंद कर दिया गया। इसी को लेकर मीर वाइज ने कहा है कि इबादत इलाही हमारा हक है और इसमें मुदाखलत नाकाबिल कबूल है। जामी मस्जिद को बार बार बंद न किया जाए। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट